Hi students, welcome back. So in this particular video we will discuss how to handle tough subject. Before this video we have discussed time management, and once you start doing time management you will be still having this problem of like how to study a particular subject. Before time management we discuss other videos, why to study, how to study, right, and how to improve as a weak student. I guess now you have reached your point, you are able to figure out that this is my time, this I am doing self study, I am cleared all my disturbances and I'm trying to do full focus. Still, with this techniques you will be struggling with few subjects, and there comes the point where we call, like individually we call, tough subjects. And here I will be dealing how to deal those tough subjects, right? There are few techniques and ways to handle that, right? So let's read how to handle weak and tough subjects for you. First of all, okay, so first thing is accept your current situation in that subject. And because only accepting it and taking on the future challenges will make that weak subject easier. So first thing is, stop complaining about your weak subject. Your weak subject is your weak subject and you have to work on that. Okay, now grow stronger on then try to grow stronger than your actual weak subject. Like if you feel like if every day you feel like I am better than this subject, I am stronger than this subject and I can crack that, you will be easily able to crack that at some point. So grow stronger than your weak subject, and for that weak subject set clear goals in order to achieve the target to get better at that subject. Set very clear goals that I will clear my basics, I will do this, then whatever are the next step. Okay, uh, next is, as I told, do not give up on your weak subject, because that weak subject is your main important area where you can improve your marks, percentage and confidence. So as I say, your greatest success lies on the other side of your greatest fear. Weak subjects are your greatest fear, and your greatest success is always once you crack that. You as a student will only feel confident only once you crack those weak subjects. uh, in every even best students have some subjects which they like, and some subjects which they don't like. And so first thing is, to cope you have to cope up with this non-interest subject or tough subject. um, you can cope up with your non-interesting subjects by changing your study habits and using some different kind of motivational tools. And whenever you are studying that tough subject, you can like kind of do it in your best time when you like study a lot, and after the whatever gaps you want, like play or something, you can always schedule those gaps just after your strong subject, tough subject. In this way you keep yourself motivated to handle those subjects. Even what I used to, like few of people try is, like if they like some snacks or something, they always take that snacks just after when they handle any tough subject. So this way you can use different motivational tools. Okay, and now to start with, first thing is you have to create an action plan for the subject you dislike. Okay, and you cannot ignore that subject. So changing your feeling about that particular subject will take some time, like few months. Like, yeah, I like this subject, it can take 3 to 4 months, but in those 3 4 months you have to cope up with the subject. You have to build more and more interest, you have to clear more and more basic. Feeling will change sometime after 3 to 4 months. That feeling of it's my weak subject or it's a tough subject will change, but currently you need to, for that to happen, you need to start handling that subject on a regular basis. So I will give a detail on now step by step ways to handle a tough subject. So first step is accept it and find why. Okay, so first thing is, if you are a poor in any subject somewhere, you are not good enough like other subjects, right? Accept it without hesitation and without bad feeling. Everyone has a weak subject and a strong subject, no one can have all subject good. So you have to first accept it, and I guess you are here, it means you accept that you have a weak subject.
And but the thing is, only accepting is not good enough. You should also find why you are weak at that subject, why you can't solve questions in that subject. So do you ever think why I'm weak in any subject? I would say if you are weak at any subject, or that subject has become weak because of this 5 reasons, any of this 5 reasons will be the reason for your weak subject, and you have to figure out that weak, why the subject is weak. First is you don't have the basic fundamental of that subject. Like you are in 10th class maths and you have the basic fundamental of 6th, 7th, 8th, 9th. Your teacher, other reason is your teacher didn't teach you well as you like, but now you have option to self read, or again reach out to coaching or different teachers to work with that. Other thing, you never focus on that subject. Like you never focused and you always thought that this is bad subject, or maybe it's a tough subject, I will never be able to grasp. Those are the primary reason for being having a weak subject. You didn't got a right way to study that subject. That is one of the other reason. You have to figure out what is that right way to do study that subject. You can work with teachers and friends, they will say how they handle that subject. And other thing is, you already had a long gap with your weak subject, like you are studying this subject after 4 months, 3 months, and now you are feeling that you are not good at that. So these are the primary 5 reasons. You have to figure out which reason matches yours. So any reason relate to you? If not, I would say you will not be able to improve until you figure out the right reason. It can be difficult for you to improve your weak subject until you figure out the reasons. You cannot keep continuing your subject studying and still you will not get marks until you figure out what are the weak areas, why your weak subject is weak. So you figure out the right plan and work on that. Okay, so first thing is figure out the plan. Okay, then next thing is how to handle weak, and next step is improve your confidence about that subject. Again I said, you have to get stronger than your subject. So improve your confidence that you can handle that subject. For making any weak subject, you should be confident and believe in yourself. If you don't have these two things, then after applying all tips still you won't be able to improve your weak subject. So आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं अपना वीक सब्जेक्ट, आप इस तरह नहीं सोच सकते कि मतलब नहीं यार ये तो टफ है, नहीं हो सकता. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर लो, क्यों वो सब्जेक्ट वीक रह गया आपका, जो मैंने 5 रीजंस बताए. ठीक है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय योर वीक सब्जेक्ट. ठीक है, और डोंट थिंक कि मैं आई कैन नॉट मेक दिस एज स्ट्रॉन्ग एज द अदर. यू कैन. ठीक है, एंड आप बोल सकते हो कि कोई भी अगर उस सब्जेक्ट में अच्छा है तो मैं भी बन सकता हूँ. आई विल टॉक टू दैट पर्सन और वर्क विद दैट, एंड धीरे धीरे मैं उसमें बेस्ट हो जाऊंगा. और मैं बोलता हूँ अगर आप कंसिस्टेंट हो, फोकस्ड हो, एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट, डेफिनेटली एनी सब्जेक्ट यू विल गेट बेटर. अगर उसके बेसिक्स भी नहीं आपको पता ना, फिर भी आप बेटर हो जाओगे. ठीक है, सो improve your confidence, strong your basics. So first thing is, there is no brain and no secret. You have to make your basic fundamentals right in that subject, then only you will improve in your weak subject. I agree in some concepts you can be good, but then अगर आप 10th की चीजें कर रहे हो मैथ्स के, तो आप हो सकता है कुछ क्वेश्चंस लगा लो, लेकिन सारे क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाओगे. क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स वीक है. सो यू हैव टू गो फर्स्ट एंड इम्प्रूव दोज बेसिक्स. और मैं ये बोलूंगा कि जब भी आपको कोई भी बेसिक प्रॉब्लम होती है, गो एंड स्टडी दैट चैप्टर. इवन वो आपको पीछे ले जाना पड़े, 6th और 7th के चैप्टर्स भी पढ़ने पड़े ना, जाके पढ़ो. अगर राइट ऑन आप बेसिक आपको नहीं समझ में आ रहा क्या आपके बेसिक्स है, तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आप टेस्ट में फेस करते हो, एग्जाम में फेस करते हो, पढ़ते समय फेस करते हो कि मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे, पावर नहीं ले पाए, गो एंड स्टडी दैट बेसिक फर्स्ट. क्योंकि ऐसे बहुत बेसिक्स नहीं है, 20, 30, 40 बेसिक्स है जो आप 1 घंटे में खत्म कर लोगे. बट मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एंड ट्राई कि बार बार उसको पढ़ो, उस नोट्स को बार बार पढ़ो, कि हर बार आपको एक नई चीजें पता लगेगी अपने वीक सब्जेक्ट में. उसको बार बार पढ़ो एंड गेट बेटर. ठीक है, एंड व्हाइल इम्प्रूविंग बेसिक, मेक श्योर यू आर लर्निंग विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग. अब इस बार जब आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, तो डीप मतलब अच्छे से समझो कि 7th में क्या लिखा था, 6th में क्या लिखा था. आपने पढ़ा था इससे पहले भी, लेकिन अब डीप अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप करो. एंड इसको फिर कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड भी पूछो, एंड देन कम बैक एंड डू योर 9th, 10th और वॉट एवर क्लास यू आर इन द बेटर पार्ट. अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप वीडियोस का भी यूज कर सकते हो. पुराने क्लासेस के वीडियोस हम लोग अवेलेबल कराते हैं कि, और आप जाओ और बेसिक्स को पढ़ो. देन थर्ड थिंग इज
कि समटाइम्स फिर भी नहीं होता है, तो टेक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स जो उस सब्जेक्ट में अच्छे हो, उस टॉपिक में अच्छे हो। टेक हेल्प फ्रॉम ए ट्यूटर और टीचर कि सर नहीं हो रहा है मेरे से, फिर भी क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे बेसिक्स कहाँ हैं, मुझे बताओ आप। हम एक्चुअली ऑलरेडी आपके बारे में इतना डेटा मेंटेन करते हैं कि हमको पता है आप किस किस चीज़ में वीक हो, आपको उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आए जो आपके वीक है। तो आप टॉक टू योर टीचर्स और वर्क विद योर फ्रेंड्स कि आप वो फ्रेंड जो अच्छा सब्जेक्ट में वो कैसे हैंडल करता है, ठीक है ना। मेरा बिलीव है कि आई गेस फ्रेंड्स ज़्यादा बेटर आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो ईजिली आपको चीज़ें समझाते हैं, अपने लैंग्वेज में, स्टूडेंट लैंग्वेज में चीज़ें समझाते हैं। सो यहाँ पे एक हेल्प लेना फ्रेंड्स का बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। वो उनके सीक्रेट जानना कि वो सब्जेक्ट को कैसे टैकल करने हैं, बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डोंट हेजिटेट। और नेक्स्ट चीज़ है, देखो इनिशियली 2-3 months यू हैव टू गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन योर क्लास ऑल्सो स्टडी हार्ड एट होम, ठीक है। और वीक सब्जेक्ट को स्पेशल टाइम दो, वीकेंड्स पे, हर समय, ठीक है। और लॉन्ग आवर्स मत दो, छोटे छोटे आवर्स दो, बट अपने इंपॉर्टेंट आवर्स दो। जब पढ़ना आपको सबसे पसंद है उस समय वीक सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है, ठीक है। देयर आर सम स्टडी टेक्निक्स जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो आप यूज कर सकते हो, एंड दैट विल चेंज योर बिहेवियर इन वीक सब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चीज है, अगेन मैंने बोला चेंज योर वे ऑफ स्टडिंग इफ यू वांट टू डू बेटर एट वीक सब्जेक्ट। studying only textbook or notes is a weak area can make you bored. अगर weak area है तो try other ways like Google करो, वीडियोस देखो, या कोई भी इंफॉर्मेशन और अलग अलग इमेजेस यूज करो, और भी कुछ टेक्निक्स होते हैं कि कलर कोडिंग यूज करो नोट्स में, फ्लैश कार्ड यूज करो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे स्टडी टेक्निक्स में, ठीक है। तो ट्राई टू टेक मोर हेल्प लाइक वीडियोस, गूगल, मोर स्टफ, ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा और नोट्स के अलावा। एंड देन यू कम टू नोट्स, लाइक अगर एसएसटी है आपको नहीं अच्छा लगता तो पहले उसके रिलेटेड स्टोरी पढ़ लो, चीज़ें पढ़ लो, और देन कम टू नोट्स एंड टेक्स्ट बुक्स। एंड जो मीनिंग्स आपको नहीं है वो पहले मीनिंग्स लिख लो, चीज़ें समझ लो, इस टाइप की चीज़ें करो, एंड देन कम टू टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आई विल से देयर इज अ वेरी वेल नोन टेक्निक टू हैंडल वीक सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स विच मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं देता है और टाइम लगता है उसमें, उसको बोलते हैं SQR3R टेक्निक, SQ3R स्टडी टेक्निक। व्हाट इट इज, लेट्स डिस्कस। इट इज बेसिकली 6 to 7 स्टेप प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या होता है, कोई भी आप SST पढ़ रहे हो, राइट, तो इसका डिटेलिंग थोड़ा सा और मैं प्रैक्टिकल डिटेलिंग नेक्स्ट सेशन में दूंगा। सो पहले हम लोग सर्वे करते हैं, मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसका टॉपिक का नाम देखो, टाइटल का, हेडिंग्स देखो, सब हेडिंग्स देखो, उसमें फोटोज को देखो, डायग्राम्स को देखो, क्या चीज़ें हाईलाइट है, क्या सेंटेंसेस हाईलाइट है, इन चीज़ों को पहले देखो। इसको बोलते हैं सर्वे, कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ SST का या टफ सब्जेक्ट का, इसमें क्या चीज़ें हैं। सो डू अ सर्वे। देन क्वेश्चंस, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। आपको क्वेश्चंस नहीं आइडिया लगता है तो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस देखो, ऑनलाइन क्वेश्चंस देखो, किस किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्वे, नाउ आस्क एंड थिंक योरसेल्फ व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट, व्हाट आई विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी चीज होती है, ऊपर टॉप पे लिख देता है ये 4 चीजें आप इसमें पढ़ोगे। सो उसको आप देखो, आप ये जो अभी सर्वे आपने किया, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें आप मतलब सीखोगे, ठीक। और आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस चैप्टर। फिर इसके बाद जब आपको समझ में आ गया ये सब चीजें, तो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई, बोल्ड चीजें समझ में आ गई, तुम आपको इमेजेस समझ में आ गया, कुछ दिमाग में एक पिक्चर बनने लगा, तब तक स्टडी को स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये आपके टफ एरियाज हैं, टफ सब्जेक्ट्स है, टफ चैप्टर है। देन एक एक करके रीड वन सेक्शन एट ए टाइम, और अपने आप में जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर आए थे, आप जो भी उस सेक्शन से अपने बुक के पीछे क्वेश्चन देखे थे, उसको रिकॉल करो, उसको आंसर करने की कोशिश करो, एंड रीड अगेन, ठीक। सो सर्वे, क्वेश्चन एंड रीड। सर्वे में हेडिंग्स, डायग्राम्स, ये सब देखते हैं चैप्टर के बारे में, फिर क्वेश्चन सोचते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और बुक के पीछे क्या क्या क्वेश्चन है। देन एक एक सेक्शन एक एक करके हम रीड करते हैं और अपने उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है रिसाइट। नाउ अगेन अभी आपका एक सेक्शन जब हो गया, बुक को बंद करो, रिकॉल करो क्या आपने सीखा, समराइज करो अपने माइंड में और पेपर में लिखो। दिस इज वेरी गुड फॉर लाइक फ्यूचर रिकॉल, आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। एंड रिकॉल whatever you have learned, and then जब आपका सारा सेक्शन, आफ्टर रीडिंग ऑल सेक्शन, डू अ रिव्यू, रीडिंग ए चैप्टर,
नाउ रिव्यू द चैप्टर टू अंडरस्टैंड इट डीपली। एक बार वापस से अब जाओ, आपको सारे सेक्शंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया, अपने आप को और क्वेश्चंस से करो कि आपको चीजें आ रही हैं कि नहीं, एंड वापस से अब पूरे चैप्टर जब पूरा सेक्शन खत्म हो गया, एक बार फिर से डीप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक बार और पूरे चैप्टर को समझो, फिर से रीरीड करने के बाद वापस से क्वेश्चंस करो, एंड जरूरत पड़े तो एक और रिवीजन करो। इसलिए मैं बार बार आप लोग से बोलता हूं कि मैं 4 से 5 बार में पढ़ाई करता था किसी चैप्टर को, क्योंकि मैं एक बार में नहीं समझ पाता था, तो मेरा वो 4 से 5 यही होता था। मैं फर्स्ट टाइम में हेडिंग्स देखता था, उसके बोल्ड लेटर्स देखता था, क्या क्या सब हेडिंग्स हैं, कैसे ये हेडिंग्स रिलेटेड है, क्या इमेज क्या है, गांधी जी का इमेज है, फर्स्ट वर्ल्ड का इमेज है, ये है वो है, और फिर इससे मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूँ कि मतलब ये किस चीज से रिलेटेड होगा। तो सर्वे के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस जब मेरे पास इकट्ठा हो जाते हैं तब मैं रीडिंग करता हूँ, और रीडिंग करते वक्त मैं फिर उन्हीं सेक्शन बाय सेक्शन उस क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ, समझता हूँ, और उसके बाद वापस से बुक बंद करके हर सेक्शन में मेरे को क्या समझ में आया वे मैं रिकॉल करता हूँ। फिर जब मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो मैं उसको रिव्यू करता हूँ, राइट, एंड देन एक बार फिर डीप अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी नेक्स्ट रीडिंग होगी ना वो बहुत और अच्छी होगी, आप समझ में आएगा, आपको और अच्छे से डीपली चीजें समझ में आ रही है। ये 4th रीडिंग होती है एक तरह से आपकी, एंड देन आप 5th में क्वेश्चन आंसर्स को एकदम डीपली अच्छे से कर लेते हो। आप नॉर्मल एक बार जो पढ़ते हो और इस तरह से कभी आप ट्राई करके देखना, टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ही नहीं, और एक्चुअली मुझे लगता है समटाइम्स ये शॉर्टर पड़ेगा आपको, और बोर नहीं होगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने सब्जेक्ट्स में, टाइम वाइज दोनों बराबर पड़ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी बुक जब सेक्शन पढ़ रहे हो उसमें आपको और भी प्रॉब्लम आएगी, कीवर्ड्स की प्रॉब्लम आएगी, इंग्लिश की प्रॉब्लम आएगी, सो या तो उसकी मीनिंग्स लिखो या बस इतना सोचो उस सेक्शन से क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व हो रहा है आपका, बस, और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में आपको और चीजें समझ में आएगी, ओके। सो ट्राई टू यूज द SQ3R स्टडी टेक्निक, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, ओके। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी टेक्निक। सो मोस्टली स्टूडेंट्स ये चीज अपने आप बिल्ड कर लेते हैं, लाइक मैंने ये स्टडी टेक्निक कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन अक्रॉस ईयर्स ये अपने आप मेरे अंदर आ गया, लेकिन मुझे साल लगे, 2 3 4 5 6 साल लगे इस चीज को अपने अंदर लाने में। आप इस स्टडी टेक्निक को अभी समझ लो, अपने प्रैक्टिस में ले आओ, ओके ओके। सो इसमें हमने इस वीडियो में हमने बात की है हाउ टू हैंडल योर वीक सब्जेक्ट, ये टेक्निक्स यूज करो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोर स्टडी टेक्निक्स। देखो there are many study techniques which are there and they are very useful, like research study techniques है, लोग इसके लिए नोबेल प्राइज विनर है, और रिसर्च ऑक्स ने इस टेक्निक्स को लिखा है, और एक्चुअली मैं बताऊं इनमें से हर एक अच्छा स्टूडेंट, एक स्मार्ट स्टूडेंट, एक कंपटीशन जो क्लियर करता है वो अपने आप ये चीजें सीख लेता है। 3-4 टेक्निक्स सारे नहीं सीख पाएगा वो, 3-4 अपने आप ही सीख लेता है, बट इट्स बेटर कि आपको ये डायरेक्टली बता दिया जा रहा है, क्योंकि नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट दिस स्टडी टेक्निक इज। आपको 2 साल 4 साल नहीं स्पेंड करना है, आप 3 महीने भी इसको परफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा व्हाट ऑल मोर स्टडी टेक्निक्स आर, और जो भी स्टडी टेक्निक्स आपसे मैच करती है उनको आप यूज करिए, जो आपके सिनेरियो को मैच नहीं करती उनको मत यूज करिए। स्टडी टेक्निक्स का मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन आपको सेंड कर दिया है ग्रुप पे, मैं उसी को डीप में थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। सेम लेक्चर जो भी आपको डॉक्यूमेंट मैंने सेंड किया था वो मैं अच्छे से उसको समझाऊंगा, ताकि आप अपने स्टडीज में यूज कर सको, आप स्मार्ट स्टडी कर सको, ठीक है। सो दैट्स फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने अपने वीक सब्जेक्ट को हैंडल करना सीखा। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है आप इसको ट्राई करो, अपने वीक सब्जेक्ट्स पे टाइम दो, 3-4 महीने का टाइम दो, ज्यादा टाइम दो। जो मैंने 5-6 चीजें बोली है कि वीकनेस आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो, कॉन्फिडेंट रहो, एंड योर वीक सब्जेक्ट विल इंप्रूव डेफिनेटली, ठीक है ना। और अगेन वीक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करो, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।